Very good morning to all of you. Now it's our sixth lecture on M1. We have seen here successive differentiation, and now we see one more problem on that. That is 1 upon x square plus a square. So we consider here y equals to 1 upon x square plus a square. So if you see what is the degree of numerator, here is a 0, degree of denominator is a 2 because there is a x square. So obviously what we have to use? We have to use here method of partial fraction method. Last lecture में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर degree of numerator is greater than or equals to degree of denominator, then what you have to use? You have to use the division method. And when degree of numerator is less than degree of denominator, then you have to use the method of partial fraction method. You have to use partial fraction method. Now if you observe that function 1 upon x square plus a square, here the numerator degree is 0. There is no terms of x. And if you see in a denominator, there is x square plus a square. So degree of denominator is a 2. So numerator से degree denominator की बड़ी है. So obviously we have to use here partial fraction method. But how to separate that 1 x square plus a square? You have to factorize that. अब ये ऐसे तो फैक्टर यहाँ पे पढ़ने वाले नहीं है 1 upon x square plus a square के. तो यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. We have to write here minus of minus a square. That is equals to 1 upon x square minus. Now that minus, if you consider that minus 1 is nothing but a I square. ये इमेजिनरी टर्म रहती है. कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने देखा होगा. सो इन दैट वी यूज द आई. यहाँ पे -1 की वैल्यू आई स्क्वायर होती है. सो अंडर रूट ऑफ -1 इज इक्वल्स टू आई. ये आप लोगों को पता होगा. इस पे एक बार और हम रिवीजन करेंगे. बट हियर सिंपली वी रिप्लेस दैट माइनस बाय आई स्क्वायर. सो हाउ वी राइट दैट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर. So we write that 1 upon x square plus a square in this way. That is 1 upon minus x square minus I square a square. So that is nothing but 1 upon x square. ये रब कर देती हूँ यहाँ से. Minus of x square and that is written as I a whole square. Okay. Now if you observe that ये कौन से फॉर्म में है? ये है a square minus b square के form में. That term is in the form of a square minus b square. So obviously that is equals to a minus b into a plus b. We can write that term as a minus b, a plus b. So y can be written as y equals to 1 upon x minus I a into 1 of x plus I a. We write in this way 1 upon x minus I a into x plus I a. अब यहाँ पे फैक्टर्स जो है आपके वो कौन से फॉर्म में आ गए? दैट इज द लीनियर फैक्टर्स. अब लीनियर फैक्टर्स को हमें सेपरेट करना है बाय यूजिंग अ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. सो हाउ वी राइट? यू कैन राइट हियर दैट इज इक्वल्स टू a अपॉन x माइनस आई ए प्लस b अपॉन x प्लस आई. ओके. नाउ वन बाय वन वी फाइंड a एज वेल एज d. अब हम हाउ वी फाइंड दैट a? आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में जैसे मैंने प्रॉब्लम लिए थे पार्शियल फ्रैक्शन के, आप लोगों को पता है, बताया था मैंने कि हाउ टू फाइंड द a. a इज इन द न्यूमरेटर ऑफ x माइनस a. अब जो टोटल फंक्शन है आपका दैट इज 1 अपॉन x माइनस आई ए x प्लस आई. जो डिनोमिनेटर में टर्म है x माइनस आई ए, वो टर्म इस फंक्शन से ओमिट करनी है और रिमेनिंग टर्म आपको यहाँ पे न्यूमरेटर में पुट करनी है टू गेट द वैल्यूज ऑफ a. सो वी राइट हियर टोटल फंक्शन कौन सा हमारा? दैट इज 1 अपॉन x माइनस आई x प्लस आई. लेकिन थोड़ा नीचे ले लेती हूँ मैं यहाँ पे. सो हाउ वी राइट दैट y इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा? डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे x माइनस आई. नाउ टू फाइंड द a, I will make here a square bracket. We have to take the term of that whole function other than that x minus a. अब x minus a के अलावा यहाँ पे टर्म है 1 upon x plus I. अब यहाँ पे हम वैल्यू क्या पुट करेंगे x की?
x की वो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे इस ब्रैकेट के लिए, फॉर दैट आवर डिनोमिनेटर बिकम अ 0। हमें पता है कि अगर हम x के लिए ia पुट करते हैं तो ia minus i become a 0, so you have to put here x is equals to i. Similarly for the second term, here the denominator is x plus i, so you have to take from that function the term other than x plus i. अब other than x plus i होल फंक्शन की टर्म क्या है, that is 1 upon x minus i a। अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू जिसके लिए अपना ये डिनोमिनेटर क्या होता है, 0 होता है। हमें पता है अगर x इक्वल्स टू हम माइनस आई पुट करते हैं, इफ यू पुट x इज इक्वल्स टू माइनस आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आई इट बिकम अ माइनस 2i। सो वी राइट इन द नेक्स्ट लाइन, सो दैट कैन बी रिटन एज हियर इज अ x माइनस आई ए। ये क्या हो जाएगा अब यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे तो, और I will continue on this side. So how we write here y equals to, when you put x is equals to ia plus I it become a 2ia. So 1 upon 2ia. In denominator there is a x minus ia. Then there is a plus sign. In denominator there is a x plus I, and in numerator there is a x is equals to minus I, put minus I minus 2i, that is minus 1 upon minus 2i a. Sorry, यहाँ पे माइनस नहीं है, in denominator there is a 1 upon minus 2i. So finally what we write y is equals to, अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 1 upon 2i there is a common term, so we take it out of bracket, that is 1 upon 2ia, and here we put 1 upon x minus i, and here is a minus 1 upon x plus i. एक बार इसको अच्छे से ध्यान से देख लो। Now what we have to do here, we have to, now हमने अब यहाँ पे टर्म सेपरेट कर ली है, so we can find the nth derivative. So यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, differentiate with respect to x, इसके साथ differentiate करेंगे with respect to x for how many times, for n times. So differentiate with respect to x for n times. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, yn, ये क्या हो जाएगा, yn equals to, ये constant टर्म रहेंगी as it is 2i, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 upon x minus ia, its nth derivative, 1 upon x minus i its nth derivative, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 upon x plus ia its nth derivative. Okay, and now हमारे पास अब रिजल्ट कौन सा है, हाउ वी गेट द nth डेरिवेटिव 1 अपॉन, यहाँ पे फंक्शन है हमारा, अगर ax प्लस b के फॉर्म में अगर हमारा फंक्शन रहता है, दैट टर्म शुड बी इन द फॉर्म ऑफ आल्सो 1 अपॉन ax प्लस b। अगर ऐसे फॉर्म में रहता है तो हाउ इज द nth डेरिवेटिव, दैट इज माइनस 1 रेज़ टू n फैक्टोरियल a रेज़ टू n अपॉन ax प्लस b रेज़ टू द पावर n प्लस 1। ऐसे फॉर्म में रहता है आपका फंक्शन, that is minus 1 raised to n factorial a raised to n upon ax plus b raised to n plus 1. So we can write that function in this way. ये रब करती हूँ मैं यहाँ पे, so yn is equals to, here how we write yn equals to 1 upon 2ia as it is। यहाँ पे क्या होगा, when we apply that result here, तो फर्स्ट टर्म के लिए हम कैसे लिखेंगे, माइनस 1 रेज़ टू n फैक्टोरियल, ये जो a रहता है दैट a इज नथिंग बट अ कोएफिशिएंट ऑफ x। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1 है, सो 1 रेज़ टू n होगा, 1 रेज़ टू n इज नथिंग बट अ 1, सो देयर इज नो नीड टू राइट डाउन दैट, सो दैट इज अ 1 रेज़ टू n, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा x minus i raised to the power n plus 1. For the second term again it is in the form of 1 upon ax plus b, यहाँ पे भी वही फंक्शन है, so we write here minus 1 raised to n factorial, again
कोएफिशिएंट ऑफ x इज हियर 1, तो यहाँ पे 1 रेज़ टू n हो जाएगा. So again 1 raised to n is a 1, so we write only in denominator ax, sorry यहाँ पे क्या है x plus ia raised to the power n plus 1. You complete that bracket. अब आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा कि -1 raised to n factorial, here is also -1 raised to n factorial common, so we take it out of the bracket, y equals to 1 upon 2ia. If you take that term common here, -1 raised to n फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस ia रेस्ट टू द पावर n प्लस 1. देखिए तो एक और यहाँ पे स्टेप आप लोगों को मैं थोड़ा बता देती हूँ. यहाँ पे जो आपकी टर्म है दैट इज x माइनस ia रेस्ट टू n प्लस 1 एंड x प्लस ia रेस्ट टू द पावर n प्लस 1. इफ यू ट्रांसफर दैट टर्म टू न्यूमरेटर, अगर इस टर्म को आप न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो यहाँ पे जो पावर है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा. That power become a negative. जैसे हमें पता है कि 1 by x अगर रहा तो हम उसे अगर न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो ये become a x raised to -1. So यहाँ पे x minus i अगर 1 upon x minus i raised to the power n plus 1 न्यूमरेटर में जाएगा तो वो लिखेंगे हम x minus i raised to the power minus of n plus 1. Similarly 1 upon x plus i रेस्ट टू द पावर n प्लस अगर हमें न्यूमरेटर में लेना है तो हाउ वी राइट दैट इज x प्लस i रेस्ट टू द पावर माइनस ऑफ n प्लस 1. वी राइट रेस्ट टू द पावर माइनस ऑफ n प्लस 1. तो दोनों टर्म हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इन अ न्यूमरेटर. तो ये सब चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे. सो देयरफॉर y हाउ वी राइट देन, यहाँ से ये टर्म कॉमन निकल जाएंगी. सो वी राइट आउट ऑफ द ब्रैकेट -1 रेस्ट टू n factorial, in denominator there is a 2ia, and in bracket if you transfer to numerator it become a x minus ia raised to the power minus of n plus 1 minus here is a x plus ia raised to the power of minus of n plus 1. अब यहाँ पे लाके हम स्टॉप करेंगे क्योंकि अगर आप अगर ध्यान से देखोगे दोनों भी यहाँ पे टर्म x minus i x plus i these are not the रियल टर्म्स, इट इज अ कॉम्प्लेक्स टर्म्स. यहाँ पे i की टर्म है, यहाँ पे भी i की टर्म है, तो कॉम्प्लेक्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रियल के फॉर्म में या फिर पोलर के फॉर्म में टू सिंप्लीफाई दैट प्रॉब्लम और टू गेट द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ अनदर डेरिवेटिव ऑफ दैट गिवन फंक्शन 1 upon x square plus a square. अब वो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो मैं थोड़ा आप लोगों को बताती हूँ. नाउ थोड़ा हम कॉम्प्लेक्स नंबर रिवाइज करेंगे. हमें पता है कि इफ x एंड y आर रियल नंबर, अगर x और y अगर रियल नंबर लेते हैं तो हाउ वी डिफाइन द कॉम्प्लेक्स नंबर, देन वी डिफाइन z इज इक्वल्स टू x प्लस iy इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. इसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर. और कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है. हाउ वी रिप्रेजेंट दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ पोलर फॉर्म, सो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस iy कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म. इन पोलर फॉर्म वी राइट इन अ पोलर फॉर्म. दैट पोलर फॉर्म इज r into in bracket cos theta plus i sin theta. और इस थीटा की और r की पर्टिकुलर वैल्यू होती है दैट इज डिपेंड ऑन दैट x प्लस आई वाई. व्हाट अबाउट दैट r को लिखा जाता है r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. आप लोगों ने ये देखा होगा 12th में कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को था, इट इज जस्ट योर रिविजन. सो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज कॉल्ड एज अ मॉडुलस ऑफ z. z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर और इन शॉर्ट यू कैन राइट इट एज अ mod of z. mod of z तो रिप्रेजेंट कैसा किया जाता है, mod z. ऐसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है mod z दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और यू कैन राइट आल्सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/2 दैट इज कॉल्ड एज अ mod of z. सेकंड थीटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y by x. नाउ वी राइट द थीटा is equals to tan inverse of y by x and that is called as a amplitude.
that is called as a amplitude. That is called as amplitude of Z. इसे कहा जाता है amplitude of Z, और in short we can write AMP of Z. Amplitude of Z, and that is called as a modulus of Z. So in this way we can write our complex number in a polar form. अब एक थ्योरम है जो आप लोगों को मैं बताऊंगी, ये लगे तो एक बार आप रिवाइज कर लो, लिख लो इसे, and then we comes on the theorem, that is a De Moivre's theorem. इस थ्योरम को कहा जाता है De Moivre's theorem. What is the statement of that theorem? We will see here. That is a De Moivre's theorem. Now, what is the statement of that De Moivre's theorem? If n is any positive or negative integer or fraction, then one of the value of cos theta plus I sin theta raised to the power n is cos of n theta plus I sin n theta. So how you can write that one of the value of that cos theta plus I sin theta raised to n can be written in this form, that is cos n theta plus I sin n theta. मतलब जो पावर रह जाता है, यहाँ पे जो पावर रहता है that become the multiple of that angle of cos and sin. जैसे हमने नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखा है cos n theta plus I sin n theta. So that can be written in this way by using that De Moivre's theorem. और इस स्टेप का और इस De Moivre's theorem का हमें यूज करना है to get the result of that nth derivative of that function. तो वो कैसे हम यहाँ पे यूज करेंगे हम देखते हैं. अब जैसे ही मैंने आपको प्रीवियस स्टेप में बताया कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोलर. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो x माइनस आई x प्लस आई बोथ आर ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं सपोज x प्लस आई, x प्लस आई. अब इस x प्लस आई को हम अगेन रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पोलर, इन पोलर फॉर्म. We consider here let x plus I is equals to, we can write in a polar form, that can be written as cos of theta, sorry here is a r into cos theta plus I sin theta. We can write that as a number, as it is a complex number, x plus I can be written in the polar form, r into in bracket cos theta plus I sin theta. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पावर है रेस्ट टू द पावर माइनस ऑफ n प्लस वन. तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पावर अप्लाई करेंगे माइनस n प्लस वन. सो नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं अप्लाई द पावर माइनस ऑफ n प्लस वन टू बोथ साइड. दोनों साइड को हम क्या अप्लाई करेंगे, पावर माइनस ऑफ n प्लस वन. तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस आई ए माइनस ऑफ n प्लस वन इक्वल्स टू, यहाँ पे भी पावर अप्लाई होगा r रेस्ट टू द पावर माइनस ऑफ n प्लस वन इनटू यहाँ पे हो जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस I sin थीटा रेस्ट टू द पावर माइनस ऑफ n प्लस वन. ओके, नाउ हाउ टू वी यूज दैट De Moivre's theorem here. अब अगर De Moivre's theorem को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो how we write that cos theta plus I sin theta raised to n, we can write that as a cos n theta plus I sin n theta. So जो पावर रहता है वो एंगल के मल्टीपल में आ जाता है. सो यहाँ पे भी हम De Moivre's theorem यूज करेंगे. तो यहाँ पे जो पावर है माइनस ऑफ n प्लस वन वो आ जाएगा थीटा के मल्टीपल में फॉर बोथ दैट cos थीटा एंड sin थीटा. तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय द De Moivre's theorem. We can write by the De Moivre's theorem. We write here as a x plus ia raised to the power minus of n plus 1 equals to r raised to minus n plus 1. यहाँ पे अब अगर हम अप्लाई कर देंगे पावर तो थोड़ा रफ कर देती हूँ मैं. So r raised to the power minus of n plus 1. Here is when you apply the De Moivre's theorem, that can be written as cos of
यहाँ पे हम लिखेंगे cos ऑफ माइनस ऑफ n प्लस 1 इंटू थीटा प्लस I इंटू साइन ऑफ माइनस ऑफ n प्लस 1 इंटू थीटा. ओके, एंड देन वी कंप्लीट दैट होल स्क्वायर ब्रैकेट. अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि माइनस n प्लस 1 थीटा के मल्टीपल में आ गया फॉर बोथ साइन एंड कॉस बाय यूजिंग द डी मोरवियस थ्योरम. ओके, तो थोड़ा मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ, एक बार आप देख लो अच्छे से इसको. I have written here the last step of problem and now we continue with that step here. अब यहाँ पे if you consider that step, अब यहाँ पे रिजल्ट कौन सा लगेगा. हमें पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा और sin ऑफ माइनस थीटा कैन बी रिटन एज माइनस sin थीटा. So how you write that term here? So that can be written as x plus I raised to the power minus of n plus 1 equals to that r raised to minus n plus 1. ये तो as it is रहेगा. यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? From that result we can write cos of n plus 1 theta. So we write here cos of n plus 1 into theta. Cos of n plus 1 theta. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Sin of minus theta that can be written as minus sin of. तो यहाँ पे आ जाएगा minus I into sin of n plus 1 into theta. We write in this way. और इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में. मतलब यहाँ पे cos of minus n plus 1 theta can be written as cos of n plus 1 into theta. और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ I into sin of n plus 1 into theta. तो ये तो हो गया फॉर x plus I raised to the power minus of n plus 1 के लिए. अब सिमिलरली अगर हम कंसिडर करेंगे ये टर्म x माइनस I रेस्ट टू द पावर माइनस ऑफ n प्लस 1. अब इसमें और इसमें क्या चेंजेस है? सिंपली यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है, तो एक बात ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है तो यहाँ पे अगर माइनस है रिजल्ट में तो यहाँ पे नेक्स्ट इस फंक्शन के लिए आ जाएगा आपका प्लस. लगे तो आप लोग ये करके देखो. यहाँ पे क्या आएगा? माइनस. यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे व्हेन यू अप्लाई द पावर देयर इज आल्सो द सेम पावर. हियर इज अ माइनस. When you apply that power by using a De Morgan's theorem, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे बीच की टर्म माइनस आएंगी और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा. When you take that minus out of that, so minus minus become a plus. तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा. So directly we can write here for the second term result. Similarly, I will write here. Similarly, how we write? Similarly, we can write x minus I raised to the power minus of n plus 1 equals to r raised to minus of n plus 1 in bracket. We write here r raised to minus of n plus 1 in bracket. We write cos of n plus 1 into theta. Simply यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस I into sin of n plus 1 into theta, and then we complete the bracket. So in this way what we get the values of that both term by taking its polar form and applying the De Morgan's theorem. So अब हम क्या करेंगे? We write that both value here. ये रब कर देती हूँ मैं यहाँ से and we write the both values here. So we write that. So that can be written as yn is equals to, we write yn equals to that is minus 1 raised to n factorial. यहाँ पे आ जाएगा आपका 2ia. Here we have written that equation 1, that is our equation 1. Equation 1 में जो टर्म्स है यहाँ पे x minus I raised to minus n plus 1, I have put the values of that. इसकी वैल्यू जो हमने निकाली है I have put that value here. Minus is there. और इसकी जो वैल्यू है x plus I raised to minus of n plus 1, ये जो वैल्यू है I have put that value here. अब थोड़ा अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो that term is a common for the both term. So obviously we take it out of that bracket. अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे cos of n plus 1 थीटा है,
यहाँ पे माइनस है। व्हेन वी अप्लाई दैट माइनस साइन तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो ये माइनस होने की वजह से बोथ गेट अ कैंसल और ये प्लस हो जाएगा तो बोथ टर्म गेट अ ऐड। सो वी राइट हियर yn इक्वल्स टू माइनस 1 रेज़ टू n फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2ia। हम इस टर्म को बाहर ले लेते हैं, बोथ टर्म वी टेक अ कॉमन फ्रॉम दी बोथ टर्म r रेज़ टू माइनस ऑफ n प्लस 1। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका ब्रैकेट में, here is that cos of n plus 1 into theta plus I into sin of n plus 1 into theta। ये माइनस साइन आ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस cos of n plus 1 into theta माइनस माइनस बिकम अ प्लस sin of n plus 1 into theta and then we complete the brackets। तो अब आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा दैट इज अ प्लस दैट इज अ माइनस, बोथ गेट अ कैंसल एंड दैट बोथ टर्म गेट एडेड। सो वी राइट हियर yn इक्वल्स टू माइनस 1 रेज़ टू n factorial upon 2ia। here is r raised to minus of n plus 1 and here is a minus minus become a plus, so that is यहाँ पे भी I है, here is also I, so I that is I, so it become a 2i into sin of n plus 1 into theta। so 2i get cancel and finally we get that result। so yn equals to minus 1 raised to the power n factorial 2ia, here is a r raised to minus of n plus 1, here is a sin of n plus 1 into theta। अब आप लोगों को लगता होगा मैडम ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेंदी है, बट यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को समझने के लिए आई हैव एक्सप्लेन हियर डी मॉर्वियस थ्योरम एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोगों को ये प्रॉब्लम जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे पेपर में, अगर आपको प्रॉब्लम आया तो यू डोंट हैव राइट दैट statement of de Moivre's theorem and that how to express the complex number in a polar form। from that result you can write that both term, you simply just you can write that x plus I is equals to, you express that in the form of r into cos theta plus I sin theta। आप इसे ऐसा लिखना, you can write that number as this and then you say it is a polar form and then by the de Moivre's, उसके बाद इसको पावर अप्लाई करना and then you write by the de Moivre's theorem this step and similarly that step also and then you put that values in your equation 1। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे जो आपके फैक्टर्स आते हैं यू हैव टू एक्सप्रेस इन अ पोलर फॉर्म, देन अप्लाई द पावर माइनस 1 रेज़ टू n plus 1 on both side and then simplify that by using a de Moivre's theorem and put both the results of that term in a polar form in that equation। so इस फॉर्म में आता है आपका nth डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन था, 1/x² plus a²। प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में ये, सो रिवाइज दैट प्रॉब्लम, एक बार अच्छे से उसको पढ़ो और आपके नोटबुक में लिखो। Here there is one problem and that is for your homework। क्या करना है आपको, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ 1/x² plus 9। इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। अब इसका nth डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले तो 1/x² प्लस हम 9 को कैसे लिखेंगे, 3²। अब अगेन इसके फैक्टर्स तो पॉसिबल नहीं है, सो ऑब्वियसली वी हैव टू सिंप्लीफाई दैट। अगेन वी राइट इन दिस वे x² माइनस ऑफ -3², माइनस माइनस बिकम प्लस, अगेन वी गेट द सेम टर्म। अब रहा सवाल -3² को हम कैसे लिखेंगे, इसे इमेजिनरी i के फॉर्म में लिखेंगे। अब हमें पता है कि -3² दैट इज अ 3², माइनस को लिखते हैं हम i², सो दैट कैन बी रिटन एज 3i होल स्क्वायर। तो -3² हमारा किससे रिप्लेस हो जाएगा, 3i होल स्क्वायर से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इक्वल्स टू 1/x² माइनस 3i होल स्क्वायर। जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था 1/x² माइनस ia²। तो a की जगह यहाँ पे 3 है, अगेन यहाँ पे फैक्टर आ जाएंगे आपके x माइनस 3i और यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस 3i। उसके बाद इसको करो आप सेपरेट by using a partial fraction method, that is a/x minus 3i plus b/x plus 3। you have to solve it। उसके बाद इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा पोलर के फॉर्म में। हाउ यू कैन राइट x plus 3i in a polar form
That can be written as r into cos of theta plus I sin theta. और फिर अप्लाई करना पड़ेगा आपको पावर, क्योंकि यहाँ पे पावर आ जाएगा आपका when you apply the nth डेरिवेटिव, तो हो जाएगा आपका माइनस ऑफ n प्लस वन. तो यहाँ पे भी रिस्पेक्ट टू टर्म. सिंपली एक बात ध्यान में रखना, जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम किया था सेम आपको यहाँ पे भी करना है. सिंपली यहाँ पे एक ही जगह 3 है, बाकी सभी स्टेप्स उसी प्रॉब्लम की तरह है. सिंपली एक ही जगह 3 है, तो उस तरह से आप लोगों को ये सेम प्रॉब्लम सॉल्व करना. होप यू अंडरस्टैंड दैट ऑल पार्ट ऑफ दैट nth derivative of 1 upon x square plus a square, how we apply the De Moivre's theorem, how is the complex number, how we take the polar form of that complex number. So यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक आप सब इसकी प्रॉब्लम की रिवीजन करो और नोटबुक में आप अच्छे से लिख लो. एंड दैट इज फॉर योर होमवर्क. यू हैव टू कंप्लीट दैट योर होमवर्क. ओके, एंड वी विल स्टॉप हियर.